یہ ان سے ایک گزارش ہے کہ کیا 5 ارب روپیہ دینے کے بعد کیسکو حکام حکومت سے اس بات پہ راضی ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی اور جو کارپوریشن کا ایریا ہے، جو سٹی کا ایریا ہے، پہلے کی طرح ان کو 18 گھنٹے بجلی ملے گی، جو دیہات کا ایریا ہے ان کو سردیوں میں 6 گھنٹے، گرمیوں میں 10 گھنٹے. کیا یہ بات ان سے طے ہوئی ہے؟ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ بلوچستان کے اور بہت مسائل ہیں. بلوچستان ویسے مسائلوں کا شکار ہے، لیکن ہم لوگ پچھلے سال بھی ہم گیس بجلی کے بارے میں بات کرتے رہے، اس سال بھی ہم گیس بجلی کے بارے میں بات کرتے رہے. وہ کیسکو چیف کو جب ہم نے بلایا، آپ وہاں تشریف فرماتے جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے بڑے اپنے اچھے انداز میں کہا کہ میں ایک دکاندار ہوں، آپ ایک خریدار ہیں، اگر آپ مجھ سے سودا لیں گے، پیسے نہیں دیں گے تو مجھے نقصان ہوگا، میں سودا نہیں دوں گا. ابھی آپ جو ہے نا کم از کم 50 ارب روپے کے لگ بھگ آپ مقروض ہو. 50 ارب کے مقروضوں کے باوجود یہ 5 ارب روپیہ انہیں قابل قبول ہوگا؟ کیا ہمیں دوبارہ یہ شیورٹی ہمیں آپ دے سکتے ہیں کہ دوبارہ ہم بجلی پہ یہاں بات نہیں کریں گے، بجلی بالکل ٹھیک ہو جائے گی تمام آستہ کی، بشمول پشین، کوئٹہ یعنی چمن، یہ تو تمام ٹھیک ہو جائے گی؟ اس چیز کی آپ گارنٹی دیتے ہیں ہمیں اس فلور پہ؟ ترین صاحب، کل آپ بھی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، آپ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں. ہم نے کہا سبسڈی جو ٹیوب ویلز پر ایگریکلچر کے حوالے سے، اب وہ کیسکو کے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کے اوپر ہمارے 329 ارب روپے رہ رہے ہیں ایگریکلچر پر. مگر آپ کے سامنے کل انہوں نے ہم سے ایک ایگری کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں 5 ارب روپے بھی اس سبسڈی کی مد میں دیں تو ہم جہاں پر اب 3 گھنٹے دے رہے ہیں انہیں جو ٹیوب ویلز کو، ہم ان کی 6 گھنٹے کر دیں گے. یہ آپ کے سامنے انہوں نے ایگری کیا تھا اور یہی بات ہم نے سی ایم صاحب تک پہنچا دی. ہم نے کہا کہ جی 6 گھنٹے نہیں، ان کو کم از کم 9-10 گھنٹے دی جائے، چونکہ حاجی صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پر فصل بوائی ہو رہی ہے، گندم ہو رہی ہے، ان کو زیادہ وہ چاہیے. تو ہمارا بھی یہی کیسکو سے ہوگا کہ ہم آپ کو 5 ارب دے رہے ہیں تو آپ نے 3 گھنٹے کی بجائے کم از کم 10 گھنٹے، کم از کم 10 گھنٹے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ شہروں اور پشین یا دوسری، تو چیف ایگزیکٹو کل کیسکو نے واضح طور پر کہا کہ جہاں سے ہمیں اماؤنٹ ملے گا، جہاں سے ہماری ریکوری ہوگی عوام کی طرف سے، اور وہاں پر لوسز جو 0 سے 10% ہے تو وہاں ہم 0% لوڈ شیڈنگ کریں گے. جہاں پر 80% ہمارے لوسز ہے وہاں ہم 11 گھنٹے کریں گے. تو وہ اب ہم یہی کہتے ہیں، عوام کو بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بجلی کے بل دیں تاکہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو. تھینک یو صاحب. خود کدھر ہیں آپ؟ میں سی ایم کے پاس ہے محکمہ، مجھے کہا ہے بات. ہاتھ سے بناتا ہوں. یہ سچ کی آواز ہے، سازش نہیں ہے. سچ کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے. ہمارے بھائی نے فرمایا کہ 5 ارب روپیہ حکومت بلوچستان کیسکو کو دے رہی ہے. یہ جناب اسپیکر صاحب مجھے یہ بتایا جائے. یہ نہیں ہے ابھی تک جناب اسپیکر صاحب، صرف پی ایس ڈی پی میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا دیں گے، پتہ نہیں نیت کیا دینے کی یا نہیں دینے کی، ابھی تو دیں گے. اچھا دیں گے. آپ کو اس فلور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم دیں گے. اچھا جناب اسپیکر صاحب، یہ بھی حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہے. یہ بھائی کیونکہ ابھی اس کو یہ کر رہے، ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ جو انلیگل ٹیوبویل ہے جس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے علاقے میں، حکومت کو چاہیے کہ یہ کیسکو کے ساتھ بیٹھے اس انلیگل ٹیوبویل کو لیگلائز کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈے. یہ ایک قسم کا، جسے ہمارے اختر حسین بھائی نے کہا کہ یہ انلیگل کے پیسے کہاں جاتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور اگر یہاں سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ انہی لوگوں کے جا کے علاقے میں لوگوں کو تنگ کرنا، ٹرانسفارمر اٹھانا، جو تمہارا انلیگل ہے پہ لگا لیتے ہیں، پھر واپس اتار لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
इसको हुकूमत को चाहिए कि इस पॉइंट को वफाकी फेडरल जो वापडा है उनके साथ फेडरल में इस बात को उठाया जाए कि जो इलीगल ट्यूबवेल हमारे इलाके में है पूर्व बलूचिस्तान में, उसको लीगलाइज करने को तरीका बनाया जाए ताकि वो पैसे जो असनी साहब, आप डायरेक्ट तरीन साहब को मशवरा नहीं दे सकते, चेयर को एड्रेस करें। सदारत में हुआ था चीफ केस्को के साथ, कल भी हमने ये प्ली रखा था। देखिए, रिकवरी को बहाना बना के, लैंड लॉसेस को बहाना बना के यहाँ पे लोगों को, मैं इस कैपिटल सिटी कोयटे की बात कर रहा हूँ, पशीन वाले बेचारे तो बहुत दूर बैठे हैं, या कलात वाले तो इससे ज्यादा दूर बैठे हैं। तो जनाब वाला, रिकवरी करना किसकी जिम्मेदारी है? आप करोड़ों रुपए महीने के अपने एम्प्लॉइज को जो तनख्वाहें दे रहे हैं जो केस्को डिपार्टमेंट वाले, वो किस मर्ज की दवाएं? चोरी 10 आदमी पूरे हल्के में अगर करते हैं तो उसकी सजा 90 लोगों को क्यों दी जाती है? अब जैसे कल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं अब्दुल खालिक हजारा साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि मरियाबाद में अगर 10-15 लोग चोरी करें जिनकी वजह से आप लोगों ने दोबारा लोड शेडिंग शुरू की, उनको पकड़ना। कि अब्दुल खालिक साहब के हाथ में कोई डंडा है या कोई कानूनी कोई जवाज है उनके साथ? किस कानून के तहत हम जाके लोगों की बिजली मुनक़ता करें? ये तो काम केस्को का है। उनके साथ मजिस्ट्रेट भी है, उनके साथ मजिस्ट्रेसी पावर्स भी हैं, उन्होंने इस काम के लिए लोग भी अपॉइंट किए हैं, उसमें इस काम के लिए लोगों को मराहत भी दे रहे हैं, सैलरीज भी दे रहे हैं। किसने मना किया उनको कि जब बिजली चोरों के कनेक्शन आप मुनक़ता ना करें? वो खुद उनसे पैसे लेके इलीगल कनेक्शंस उनको दे रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं, जब ये एग्रीकल्चर के हमारे जो फीडर्स हैं, वहां पे अगर 100 ट्यूबवेल लीगल है तो 150 ट्यूबवेल इलीगल चल रहे हैं। इलीगल ट्यूबवेलों से महीने के 5 से 10 हजार रुपए केस्को वाले रिश्वत लेते हैं, जिसकी सजा जो है वहां पे जो लीगल ट्यूबवेल वाले उनको भी भुगतना पड़ता है। यहाँ पे केस्को के अपने एहलकारान आते हैं, लोगों से पैसे लेके उनके घरों में इलीगल कनेक्शन भी लगाते हैं और महीने का अपना उससे भत्ता भी वसूल करते हैं, और उसी को जवाज बना के लोड शेडिंग पे कोयटा शहर में, जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में कोयटा सिटी में 8-8, 9-9 घंटे यहाँ पे लोग लोड शेडिंग की सजा भुगत रहे हैं। उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं जो चोरी कर रहे। किसने आपको मना किया? कैसे हाउस से किसी ने आज तक कहा कि आप चोरों को ना पकड़े? तो इसको जवाज बना के 11-11 घंटे की लोड शेडिंग हम पे क्यों मुसलत की जाती है? किसने उन चोरों की सरपरस्ती की? अगर हम में से किसी ने उन चोरों की सरपरस्ती की है तो केस्को वाले आके हमें लिस्ट बता दे कि जी फिलाने की सरपरस्ती सना बलोच कर रहे हैं, फिलाने की चोरी को जो है अख्तर लांगा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, फिलाने की चोरी को असगर तरीन तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आके हमें बता दें, फिर हम अपने उस गुनाह से जो है हम तौबा भी कर लेंगे, हम उससे बाज भी आएंगे। अगर ये उनकी जिम्मेदारी है चोरों को पकड़ना, तो फिर वो अपनी नालायकी जो है वो हमारे ऊपर ना थोपें। अपनी नालायकी, अपनी करप्शन, उसकी सजा वो हमें और हमारे लोगों को मेहरबानी करके ना दें। जनाब स्पीकर, इस बात की मैं मिनिस्टर साहब से वजाहत चाहूंगा और इस बात का एक क्लियर कट हमें एक फार्मूला दिया जाए कि लैंड लॉसेस को और इन चोरों को किस तरह काबू किया जा सकता है। वो हमारा एडिक्ट नहीं है, वो हमारा दर्द सर नहीं है, वो केस्को का है। उस दर्द सर को अपना वो खुद दूर करे। शुक्रिया। वैसे इस पर सिर्फ मोहरी की बात कर सकता है। वज़ीर बराए महकमा तवानाई की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूश करवाएंगे कि हुकूमत बलूचिस्तान एग्रीकल्चर सब्सिडी की मद में 26 अरब 17 करोड़ रुपया और मुख्तलिफ महकमों की मद में 24 अरब 2 करोड़ रुपया, जिसको कुल मिलाकर 50 अरब 19 करोड़ रुपया बनते हैं, केस्को बलूचिस्तान के मकरूज हैं। जिसके बाबत केस्को ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ फीडर की बिजली बंद कर दी है और कुछ अजला की बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत की केस्को को मकरूज़ा रकम की अदायगी ना करने की क्या वजूहात है, तफसील फराहम की जाए। स्पीकर, में जिस तरफ तवज्जो मबजूल कराई है वो बहुत ही अहम मसला है और इस सिलसिले में आपकी सरबराही में हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव केस्को से भी मीटिंग हुई थी। ये जो बकाया जात हुकूमत पर हैं कोई 24 अरब रुपए के, 24 अरब रुपए के जो बकाया जाता है सब्सिडी की मद में, ये 2002 से चलते हुए आ रहे हैं। गुज़िश्ता 19 साल से हर हुकूमत आई है उन्होंने पार्शल पेमेंट की है।
गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो 24 अरब बनता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा अलग बनता है, 60% हमारा है। अगर 75,000 से जो ज़्यादा बिल आता है तो वो बकायदात वो जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो देता है। तो इस सिलसिले में हमारी कल नवाब जाम कमाल खान साहब से भी बात हुई, एनर्जी का पोर्टफोलियो भी उनके पास है, तो हमने वहाँ मंगाई एक समरी एनर्जी डिपार्टमेंट से सीएम की तरफ गई हुई है, जिसमें हम अब केस्को को 6 अरब रुपए की खती रकम देने जा रहे हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव केस्को ने ये कहा है कि अगर मुझे 5 अरब मिल जाए तो ये जो हम लोड शेडिंग कर रहे हैं उसका दौरानिया कम कर देंगे, जिस पर हम तमाम मेंबरान मुत्तफिक थे अपोजिशन से और हुकूमत की तरफ से कि ये एक इज्तिमाई मसला है, ना ये अपोजिशन का है ना ये हमारे ट्रेजरी बेंच का है, ये तमाम बलूचिस्तान का है। और मैं आपको इस फ्लोर पर यहाँ पर एक यकीन दहानी कराता हूँ कि इस मसले को हमने सीरियसली टैकल किया हुआ है। और आप देखिए 5 अरब रुपए के जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्टेड है, इसके लिए हमारे बजट में रिफ्लेक्टेड है। और हम अनकरीब वो 5 अरब रुपए के इन्हें दे रहे हैं ये इस सब्सिडी की मद में। 1 अरब रुपया जो हमारे महकमों की तरफ से, जो हमारे गवर्नमेंट महकमों के पास लायबिलिटीज है, उस मद में दे रहे हैं। साथ साथ में हमने एक रकम 823 मिलियन रुपए की जो केस्को ने हम पर ओवर बिलिंग के हवाले से या जुर्मानों के हवाले से लगाई थी, वो भी हमने माफ़ करवा लिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनसे माफ़ कर लिए। इसके लिए मैं चीफ एग्जीक्यूटिव केस्को का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमसे ताउन किया है और हम भी उनके साथ ताउन करेंगे। इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में मसला हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।